So structures can be used to define user-defined data types. These are new data types which represent some real-world data and can be used to define these real-world objects. One thing more that you should note that when you define a structure, it does not mean that you have created a structure. You have just defined. This is like you have given the definition of the data type, not the variable. So we should always give the structure definition or the union definition in the global scope. Generally, it's not in all cases, but generally you should give the definition of structure and unions in global scope. That means you should define your structure or unions before May, okay, so that you can define the structure variables or the union variables within main or in any other user defined function. तो आप कहीं पर भी इसकी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने स्ट्रक्चर और यूनियन की डेफिनेशन को ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया है. इज इट क्लियर? So you should prefer to define structures and unions before declaration of May. So this it will facilitate you to use the structure definition or the union definition throughout the program. So this is all about the structure, and the unions are also similar to structures. The same kind of information can be stored in the unions also, but the basic difference between union and structure is that union is being defined with the help of keyword union as compared to the structure, which is defined with the help of a keyword struct. Okay. So you can say this is the one difference when you are being asked to differentiate between structures and unions. So union आपका एक kind का user defined data type है और structure दूसरे kind का है, and for that purpose we are using different keywords for defining these structures and unions. जो आपके पास यूनियन है, I have mentioned this in lecture also. ये आपका स्ट्रक्चर है, ऐसा आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं. On similar pattern you define unions. This is the definition of union. The only difference is the tag name and the keyword. Only difference is keyword. Okay, and rest of the things may be same, or you can say similar. But the basic difference lies in the allocation of memory in the structures and unions. When we allocate memory to the structure, that is the memory requirement is calculated in this fashion that we add all the memory requirement of all the data elements or the member elements of the structure. So suppose in this case the first element is requiring 20 bytes, second element is requiring 2 bytes, third element is requiring 10 byte, again 10 byte, and again 4 byte. So we add them all, it comes out to be 46 byte. So for the for representing the structure of a student, we need 46 bytes of memory. Okay. If we define a structure of book, suppose the title is say 50 bytes, author name is 30 byte, cost is float, character publication is 30 byte, and ISBN number is say 15 bytes. Okay, so this is also heterogeneous data. Some are floating point numbers, and some are character arrays or strings. Okay. So now come to the requirement of memory for this particular scenario. So now calculate 50, 30, 80, 110, 100. 20 customer addition. Okay, so this will become 129 bytes. Okay, the size of struct book is 129 bytes. Whenever we define a variable of type struct book, it will require 129 bytes when we define the variable, not when we define the structure. Structure is just the template for definition of the structure variable. जो भी हम structure variable define करना चाह रहे हैं, this is the template. स्ट्रक्चर वेरिएबल आपका कैसा होगा, उसके अंदर कौन से एलिमेंट, कौन से मेंबर एलिमेंट होंगे, वो आपने यहाँ पर डिफाइन किया. बट वी हैव नॉट डिफाइंड द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा टाइप. अभी हमने कोई यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है. दिस इज द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर. यहाँ पर आप देख सकते हैं. ऑन द सिमिलर लाइंस वी कैन डिफाइन यूनियंस. दिस इज द वे यूनियन इज बीइंग डिक्लेयर्ड. द ओनली डिफरेंस इज इन द साइज कैलकुलेशन ऑफ द यूनियन.
suppose we declare union of book instead of defining a structure, although this is not correct representation of book, but suppose just we are replacing struct with union. So now the book will represent union of the book. Instead of a structure, we are defining a union book. Okay, so now this book is also containing all the same element: character, title 50, author 30, cost and publication, and ISBN. So you can calculate the size of individual elements. The first element require 50 bytes, second element require 30 bytes, third element require 4 bytes, and fourth element require 30 bytes, and last element is requiring 15 bytes. So this is the memory requirement of individual elements or the individual members of the union. But in case of union, the size of union is equal to the size of largest data member of the union. So instead of adding them all, we require only 50 bytes of memory, because the first element, which is requiring 50 bytes, is the largest element of the union. तो आप देख रहे हैं यूनियन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 50 बाइट का है. So compiler will allocate 50 bytes of memory to this union. Whenever you define a union variable, it will require 50 bytes only. Instead of requiring 129 bytes, it will require only 50 bytes. This is the memory saving in case of unions. So same memory location is used, or you can say is shared by different members of the union, contrary to the definition of a structure where each individual member is having its own memory. So there's no problem. Okay, each member is having its own memory. So whatever you store in a particular variable, it will remain there, because its memory is not interfering with others' memory. But in case of union, because we have assigned only memory enough to hold the largest data element of the union, जो आपका सबसे बड़ा एलिमेंट है, सिर्फ इतनी मेमोरी इसको एलोकेट की गई यूनियन को. तो जब आप इसमें टाइटल स्टोर करेंगे, so it will occupy all the 50 bytes. Okay, and if you now allocate the author name, so what will happen? The first 30 bytes will be overwritten by the next data member. We are having only 50 bytes. Okay, and now if we have a stored title, then title will consume all 50 bytes because its size is 50. Okay, now if we assign some value to author, then what will happen? Since we are sharing memory among all the data members of the union, so author will also share the same memory. तो जो टाइटल में आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, अगर आप ऑथर की वैल्यू स्टोर कर देते हैं, व्हाट विल हैपन? द टाइटल विल बी ओवररिटन. तो जो टाइटल के कंटेंट थे ओवरराइट हो जाएंगे, और अब आपके पास जो कंटेंट रहेगा, जो वैलिड कंटेंट है, दैट विल बी द ऑथर नेम. एंड सपोज नाउ इफ यू स्कैन कॉस्ट ऑफ द बुक, सो व्हाट विल हैपन? नाउ द कंटेंट ऑफ ऑथर विल बी ओवररिटन एंड फर्स्ट 4 bytes will be consumed by the cost. So now अब ऑथर जो नेम है वो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा, और अब उसमें जो आपके पास वैलिड वैल्यू रह जाएगी, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द बुक. एंड नाउ इफ यू स्टोर पब्लिकेशन, देन अगेन first 30 bytes will be overwritten. So now cost will be erased from memory and publication will be stored. And suppose if you store ISBN number in the of the book in this variable, then publication will be overwritten and first 15 bytes will be allocated to the, or the consumed will be consumed by the ISBN number. So only one data element can be valid at any time in the memory. Is it clear? Make it clear that if you are using union variable, then only one member at a time can be valid. If you scan all the valid element only, एलिमेंट स्कैन करते हैं, उसको प्रिंट करा लेते हैं, तब तक ठीक है. लेकिन आप अगर पहला एलिमेंट स्कैन करते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट स्कैन करते हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग? जब आपने पहला एलिमेंट स्कैन किया, आपके पास जो 50 बाइट्स का साइज था उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी. लेकिन आपने उसके बाद दूसरा एलिमेंट स्कैन किया, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेम मेमोरी को शेयर कर रहा है. सो व्हाट विल हैपन? इट विल ओवरराइट द कंटेंट्स ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा. जो आपने प्रीवियसली डेटा स्टोर किया था, वो कंटेंट आपके इरेज हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे. सो व्हेन यू स्टोर ऑथर नेम, देन टाइटल विल बी ओवररिटन. और वाइस वर्सा, अगर आपने ऑथर नेम पहले स्कैन किया तो ऑथर नेम में 30 बाइट आपके कंज्यूम हो जाएंगे. अगर उसके बाद आप टाइटल स्कैन कर लेते हैं, तो टाइटल जो है वो आपका वैलिड रहेगा और ऑथर नेम इनवैलिड हो जाएगा. सो ऑर्डर डजंट मैटर, बट
the element which is being scanned at last will have the final value. तो जो सबसे बाद में आप राइट करेंगे वही वैल्यू वैलिड बचेगी, जो पिछली वैल्यूज होंगी वो सब आपकी ओवर राइट हो जाएंगे. सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग रिगार्डिंग यूनियंस. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनियंस एंड स्ट्रक्चर्स. तो स्ट्रक्चर के केस में आपके पास जितने डेटा मेंबर्स हैं सबका साइज जब आप ऐड करेंगे वो स्ट्रक्चर के साइज के बराबर होगा, जबकि यूनियन के केस में क्या है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके साइज के बराबर जो यूनियन वेरिएबल है उसका साइज हो जाएगा. सो if we create union of the book, it will require 50 bytes, and if we create a structure of the book, it will require 129 bytes of the memory. Okay. यहाँ पर आप देखें मैंने एक शो किया, एक फिगर ड्रॉ किया, although it's very bad, but I've drawn it using mouse. So this is the structure being represented in computers memory. कंप्यूटर की मेमोरी में आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा. फर्स्ट मेंबर जो भी आपका साइज रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंप्यूटर की मेमोरी में ये आपका स्टोर हो जाएगा. देन सेकंड एलिमेंट स्टोर होगा, तो जो भी मेमोरी रिक्वायरमेंट फर्स्ट एलिमेंट का है वो यहाँ पर आ जाएगा. सपोज इट इज रिक्वायरिंग 4 bytes, it is requiring 2 bytes, it is requiring 4 bytes, and fourth element is requiring 8 bytes. So all the elements will be assigned memory side by side. तो आपको पहले एलिमेंट की मेमोरी, दूसरे की मेमोरी, तीसरे की मेमोरी और चौथे एलिमेंट की मेमोरी, इस तरह से आप सबको ऐड कर देंगे. इट विल गिव यू द साइज ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर. नाउ सपोज इफ यू डिफाइन union instead of structure, what will happen then? If you see in this figure, the size of fourth element is the largest size. Okay, so if you made union instead of structure, what will happen? Only the size equal to element number 4 will be allocated to the whole यूनियन. यूनियन का साइज कितना हो जाएगा? जो आपको फोर्थ एलिमेंट का साइज था यूनियन का साइज हो जाएगा. अगर फर्स्ट एलिमेंट का जो भी साइज है, सपोज सेकंड एलिमेंट इज इंटीरियर, थर्ड एलिमेंट इज फ्लोट एंड फोर्थ एलिमेंट इज इट विल कंटेन दी डेटा जाएंगे. अगर आप फ्लोट स्कैन कर लेते हैं देन फर्स्ट 3 bytes विल बी ऑक्युपाइड, एंड इफ यू स्कैन डबल देन all 4 bytes will be occupied by the double. So whichever data you scan at last will occupy the first byte, and from first byte up to the number of byte which is required of the memory. किसी भी डेटा की चेंज हो जाती है, इट मींस डेटा आपका गार्बेज हो गया, वो डेटा आपका खराब हो गया. ओके.
सर ने लीव कर दी दोस्तों क्या? सर कहाँ गए? पता नहीं, सर कहाँ तुम पढ़ चले रही गए। हो? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। कैसे? तू कौन सी दुनिया में, तेरे तेरे दिख नहीं रही क्या मैं? हम्म। फारे। रिकॉर्डिंग हो रहा है सब। पता है। ओह, मैं रिकॉर्डर है, भाग रहे। सर अगले दिन से ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, सर ने रिकॉर्डिंग पर लगाया, हम क्या करें। तुम लोगों को मार्क्स कितने कितने मिले हैं यार? यार मुझे 9 मिला, पता नहीं है कहाँ कट गया। कौन सा? किस किस चीज में, फारे किस चीज में मार्क्स मिले? मैं तो अभी फोन लिया, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी। ये यार रिकॉर्ड हो रहा है यार, नाम काट देंगे सर स्कूल से। चलो रखो। फारे बता ना। यार रिकॉर्ड हो रहा है, तुम समझ में नहीं आ रहा? ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चल जरिए। तुम अपना बैक ऑफ करो, सो जा। पढ़ ले थोड़ा तो।
शायद क्लास ओवर हो गया तो चले।
I audible now? Yes, sir. ओके, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, किसी कॉल आ गई तो मोबाइल का वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, इस वजह से जो वो। ओके, तो बीच में आप लोगों ने कुछ मिस तो नहीं किया? हो सकता है मैं बोलता रहा और आपको सुनाई नहीं दिया। मैं आपको बता रहा था स्ट्रक्चर के बारे में कि आप कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर बताया था मैंने, आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? मिस हो गया? नो सर, यूनियन से बता दीजिए। यूनियन कहाँ से मिस कर दिया मैंने? सर यूनियन से आपकी आवाज़ नहीं क्लियर थी। ओके ओके, मैं दोबारा से यूनियन से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? ओके, तो मैं आपको यूनियन के बारे में बताता हूँ। अपना माइक ऑफ कर दीजिए, मेरी आवाज़ यूनियन जो है वो आपका this is similar to structures, but main difference in lies in the allocation of memory। जो आप यूनियन देख रहे हैं, यूनियन में और स्ट्रक्चर में वैसे तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट सेम पैटर्न पे इन्हें डिफाइन करते हैं, सेम पैटर्न पे इन्हें यूज करते हैं। इनका मेंबर एक्सेस करने का मेथड भी आपका सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज इन द एलोकेशन ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी एलोकेशन होगा इनको अलग अलग तरह से होगा। स्ट्रक्चर के केस में जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनके साइज को सम करके जितना सम आएगा इतनी मेमोरी स्ट्रक्चर वेरिएबल को जो है वो एलोकेट की जाएगी। जबकि यूनियन के केस में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जितने भी डेटा मेंबर्स हैं यूनियन के, उनमें जो लार्जेस्ट मेंबर है उसके बराबर साइज जो है मेमोरी का वो इसको एलोकेट किया जाएगा यूनियन को। ओके, दिस इज एन एग्जांपल। स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड आप देखें, इनका डिफाइन करने का पैटर्न जो है वो सेम है। स्ट्रक्चर के लिए कीवर्ड स्ट्रक्ट है और यूनियन के लिए कीवर्ड यूनियन है। टैग नेम आपको यहाँ पर भी देना है, जो भी आप टैग नेम देना चाहें। दिस इज नॉर्मल वेरिएबल नेम, कोई भी आपका नाम हो सकता है। यहाँ पर हम जो नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो स्टूडेंट नाम यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल का नाम लिया सुपर वेरिएबल। एक आप सुपर वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें आप चाहे कैरेक्टर स्टोर कर लें, चाहे इंटीजर स्टोर कर लें, फ्लोट यूज कर लें या डबल यूज कर लें, कोई सा भी आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक सुपर वेरिएबल नाम का वेरिएबल है जिसमें आप कोई भी डेटा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो सेम पैटर्न है। दिस इज यूनियन कीवर्ड, ठीक है। यूनियन में आपके पास यूनियन कीवर्ड है और स्ट्रक्चर के केस में आपके पास स्ट्रक्चर कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड है, यहाँ यूनियन कीवर्ड है। यहाँ पर टैग नेम आपके पास कुछ भी है, यहाँ स्टूडेंट था, यहाँ पर सुपर वेरिएबल है। एंड दिस इज द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर की बॉडी जो है वो मेंशन करी, जो भी चीज़ें आपने डिफाइन की, सारे मेंबर्स डिफाइन किए, उनका डेटा टाइप दिया है। जैसे नॉर्मल डिक्लेरेशन होता है इस तरह से आप ईच एंड इंडिविजुअल मेंबर जो स्ट्रक्चर का वो यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। Similar is the case with the rank. So these are called members of जो आपका कीवर्ड है। और यहाँ पर जब डेफिनेशन फिनिश होगी, जो क्लोजिंग ब्रेस है, उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि जो हम चलिए वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेमीकोलन लगाया है at the end of structure definition or union definition या यूनियन डेफिनेशन आप देखें यहाँ पर सेमीकोलन। यहाँ पर एक सेमीकोलन हमने लगाया हुआ है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बाद या यूनियन की डेफिनेशन के बाद। एंड वी हैव प्रोवाइडेड द टैग नेम। Now you can see, for example, I am defining a structure. हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं ABC में 2-3 मेंबर डिफाइन करते हैं, इंटीजर A,
would be an is just an example structure, so I can put the semicolon here. Just note the semicolon. ठीक है, ये आपका semicolon है. अगर आपने इस तरह से कर दिया, then this is the end of definition. End of definition. आपका definition का end हो गया. And if you need to define the C, and you have defined a variable, suppose var1. आपने variable define किया. So var1 is of type struct abc. This is the reason we need the tag name. आपने अगर टैग नेम दिया है तो आप इस वेरिएबल को कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर भी आपको जरूरत है उसके स्कोप के हिसाब से आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द टैग नेम abc. अगर आपने टैग नेम ना दिया होता, एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस टैग नेम इज ऑप्शनल, बट इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड दिस टैग नेम, सपोज रिमूव फ्रॉम दिस डेफिनेशन, आप यहाँ से टैग नेम हटा देते हैं, स्टिल देयर विल बी नो एरर इन योर प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम में कोई एरर जो है वो नहीं आएगी. बट now you will not be able, because since there is no tag name, no abc, so actually there is no tag name. Now if you want to define the variable of this structure type, then you cannot define. Wrong. This is wrong. Compiler will say this is error. Compiler जो है वो आपके इस स्टेटमेंट को एरर बता देगा, because struct को जो आप यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल नेम के साथ, इट विल कंसीडर दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर. ये var1 को एक नया डेटा टाइप कंसीडर करके मान लिया कि आप नया डेटा टाइप क्रिएट करने वाले. सो यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन द वेरिएबल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो द स्ट्रक्चर, इज इट क्लियर? अगर आप इसमें टैग नेम नहीं देते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द वेरिएबल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप. So how to create this kind of structure? Or union where there is no anonymous structure. रिमेंबर दिस डेफिनेशन कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं या यूनियन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें आपने कोई टैग नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन इज कॉल्ड एनोनिमस स्ट्रक्चर और anonymous union, because you have not specified the name of the structure or the tag name of the structure. That's why this is called anonymous, having no name. Okay. And you cannot declare the variable cannot declare variables of anonymous structure at a later time. आप यहाँ later stage में इस anonymous structure के variables create नहीं कर सकते हैं. So how to create the variables? So how to create the variables of anonymous क्रिएट कैसे करेंगे? अगर आपने एनोनिमस स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसके वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हैं बाद में, फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे एनोनिमस स्ट्रक्चर के? सो द
anonymous structure variables can only be declared at the end of definition. और union. आपने definition दिया at the end of definition you can create the members of the variables of the structure type, anonymous structure type or union type. For example, I am creating a union and the method is same for union and structures. Say this is XYZ. Okay, I should not give. क्या आपने दिया? If you end the definition, then you cannot declare variables of this union anywhere in the program. So this union is useless. Okay. And if you want to use anonymous union, then you have to define the variable names at this time before the end of definition. अगर आपको variable चाहिए इस type के, then you can define the variable at this point of time. Just note the place of declaration of variables. यूनियन तो आपकी डेफिनेशन हो गई. अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे डेफिनेशन यहीं पर फिनिश हो जाएगी. तो जस्ट बिफोर द सेमीकोलन यू कैन स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनियन वेरिएबल. जो आपने यूनियन एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया, इस डेटा टाइप के वेरिएबल्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, सो यू कैन स्पेसिफाई एज मेनी वेरिएबल्स एज रिक्वायर्ड बाय योर प्रोग्राम, where 1, where 2, where 3. But once the definition is finished, आप देखें सेमीकोलन के बाद डेफिनेशन एंड हो गई. ठीक है. नाउ यू कैन नॉट डिक्लेयर एनी अदर वेरिएबल ऑफ दिस यूनियन और स्ट्रक्चर. आपके पास अगर स्ट्रक्चर है, यूनियन है, आप यहाँ पर चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज द प्लेस, दिस इज योर लास्ट चांस वेयर यू कैन क्रिएट द वेरिएबल्स ऑफ द anonymous structure or anonymous union. But after the definition is finished, after the semicolon definition is finished, then you cannot define or declare variables of your union or structure. Okay, so this is the difference between normal union, normal structure and the anonymous structure. Anonymous में आपके पास structure का कोई tag name नहीं है. It means you have a type without any name. आपके पास एक data type तो आपने create किया, लेकिन उसका कोई type नहीं. तो जिस वक्त आपने data type create किया, उसी वक्त आप उसकी variable भी create कर सकते हैं. But once the definition is finished, you cannot define the variables of this particular data type. Okay. थोड़ा आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो गई. अदरवाइज मैं आपको प्रोग्राम भी बताने वाला था. मेंबर एक्सेस के बारे में बताया था. मेंबर जो आप वेरिएबल आप डिक्लेयर किया एक्स, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स. ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का. नाउ यू वांट टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर. तो आप मेंबर कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए वी हैव अ ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, दैट इज द डॉट. सो वी यूज name of the structure variable, this is x, followed by dot and then followed by the member of the structure. जो भी आपका structure उसके member का आप नाम specify करेंगे. x dot name, this is the name of first variable. It means name member of the structure x. X dot age, it means age member of the structure or union x. So this is how we access the members of the structure or the union. Okay. In this pattern you can access the structures and unions. So go through the lecture and try to solve the problems given in the lecture. इसका मैंने आपको notes
उसमें गूगल क्लासरूम पर भी डाल दिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्हीं प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो आप मैंने स्टूडेंट से रिलेटेड दिया है या सुपर वेरिएबल से रिलेटेड दिया है, दिस सुपर वेरिएबल कैन होल्ड एनी वेरिएबल। आप इसमें कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट या डबल स्टोर कर सकते हैं, कोई सा भी वेरिएबल इसमें स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। So that's why I have named it as super variable, and only one variable is valid at any time. So super variable can represent any data, but it will be having only one kind of data at a time. Okay, so you go through the lecture and try to write programs and ask if any problem. जो मैंने YouTube पे आपको लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वहाँ पर भी आप जो है अपने प्रॉब्लम, लेक्चर सुनने के दौरान आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, कमेंट में आप डाल सकते हैं, एंड आई विल आंसर देम। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ अवर टुडेज मीटिंग of the class. Okay, so I'm going to stop now. Thank you. क्लास ओवर हो गई? कोई बता दो, क्लास ओवर हो गई? हाँ, कुपोषित सिंचन हो गई। ओके मोटी।